major pillar of golden rule is basically the GS knowledge. So the ultimate goal अगर आपको दिखेगा as per your GS knowledge without any iota of doubt, without any single doubt, it should be liberty. जहाँ भी बहुत extreme word आ रहे हो, no, cannot, ठीक है, must, तो इनको आप ध्यान से देखिए, ठीक है. Hello everyone, greetings from Bano IS, and there were multiple requests from your side that, sir, you have done the part 1 of 2023 of Seaside Comprehension. Please also upload the part 2, the rest of the questions. So last time in the part 1, we did from question 1 to 42. So we'll see the rest of the question in this session very quickly. And you also know what are the general golden rules we are following in this. Major pillar of golden rule is basically the GS knowledge, the logic, the kind of rationality one person should have as per the GS knowledge, common sense, and anything which is narrow, which is negative perspective, which of negative tone, which is something is a solution, but a very narrow solution. So such things are usually eliminated. So you have to see that. और जिनको समझ नहीं आ रहा है, they can look backwards. Are multiple videos uploaded on CSAT comprehension on the YouTube of Bano IS. थिंग इज दैट कि जिन लोगों के अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सपोज कि उतना नहीं हो पा रहा है, 90% तक नहीं आ पा रहा है, 80% तक नहीं आ पा रहा है, दैट मीन्स देखिए अगर आपको इस पे मार्क्स लाना है इस टाइप की चीज़ में, तो जो गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए हैं, तो उसके अंदर ये भी है कि अगर आपका सपोज जीएस जनरल स्टडीज स्ट्रांग नहीं है, अगर वो वीक है, तो आप बताइए कि कैसे आप वो एक्यूरेसी, डिजायर्ड एक्यूरेसी, क्योंकि हम लोग जीएस के बेसिस पे ज़्यादा, हमारा जो मेन पिलर है टिप्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को विदाउट पैसेज पढ़ के, वो मेजरली रिलाई कर रहा है जीएस के नॉलेज पे. अगर आपका जीएस ही वीक है तो फिर थोड़ा सा कम आपको एक्यूरेसी मिलेगी आपके क्वेश्चंस में, ठीक है. दूसरा ये है कि आप जब तक पीवाईक्यूज को 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज को आप जब तक नहीं लगाओगे, ठीक है, जब तक नहीं लगाओगे, उसमें गलतियां होंगी, उस गलतियों को सीखोगे कि हाँ क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, कैलिब्रेट करोगे, उसको री करोगे, तब जाके आप वो डिजायर्ड एक्यूरेसी पे पहुंचोगे. दूसरी चीज कि अगर आप इन सब ट्रिक्स को, इफ यू अप्लाई दीज ट्रिक्स टू, I would say, non-UPSC papers, including mock test of institute, CSAT के mock test of institute, I don't think so कि वहाँ पे ये अप्लाई होता होगा, क्योंकि I haven't seen so, ठीक है. तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम CSAT बात कर रहे हैं यूपीएससी के, और यूपीएससी में अप्लाई होना चाहिए, बाकी जगह हो ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. So let's see this one. So the first comprehension question, yes, 73. So let's see what 73 says to us. Based on the above passage, which of the following best expresses the ultimate goal of the state? So any state ultimate goal क्या होगा उसका? Personal safety, ठीक है, but not an ultimate goal. Health of body and mind, not an ultimate goal, part of a goal. Communal harmony, yes, part of a goal, but not very ultimate goal. Liberty. So now अगर आप चारों को देखते तो आपको ये पता होगा कि liberty is something which is also enshrined in the preamble, ठीक है, liberty of faith, expression, worship, belief, etc. ठीक है. तो वहाँ से communal harmony is nothing but a subset of the liberty itself. And liberty, you know the article 21 also. So the ultimate goal अगर आपको दिखेगा as per your GS knowledge without any iota of doubt, without any single doubt, it should be liberty, ठीक है. liberty is a broad term, ठीक है. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक liberty का हिस्सा भी बन जाती है ना. आर्टिकल 21 को कितना एक्सपेंड किया गया, ठीक है. सो 73 डन. और देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस. ओके, 71. Following statement more likely to reflect what the author has intended to say. Okay, enrollment in school and colleges is high, but there is no quality. Enrollment high है, but no quality. I have said multiple times in the previous videos also. जहाँ भी बहुत extreme word आ रहे हो, no, cannot, ठीक है, must, तो इनको आप ध्यान से
देखिए, ठीक है, नो क्वालिटी ऐसा बोला ही नहीं जा सकता कि कोई क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, किसी स्कूल में तो होगी, ठीक है, सो इट कैन नॉट बी ऑलवेज वैलिड ऑलवेज. Unemployment must be seen as a function of rising education and aspirations of youth. It can be said कि like the point is valid, it cannot be eliminated because unemployment जो बढ़ रहा है उसका one of the factors, some of the factors are the rising aspiration of people. Also like आप देख पा रहे होंगे कि लोग बाग 2-3 साल 4-5 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, प्राइवेट जॉब में नहीं जाना चाह रहे हैं जहाँ पे 10 12 15 20 हज़ार जो भी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर पर्क्स एक्सेट्रा. दूसरी चीज़ एजुकेशन बढ़ रही है, तो एजुकेशन बढ़ रही है तो फिर एस्पिरेशन भी बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट को लेकर. तो यस, इट कैन बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एज वेल एज एस्पिरेशंस ऑल्सो. तो अभी इसको रख लेते हैं, वी कैन नॉट एलिमिनेट, देर इज नो नो नो, ठीक है, देर इज नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू अकोमोडेट. ऐसा तो बोला ही नहीं जा सकता कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ही नहीं, ठीक है, सभी नेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, बट यस, और देर आर नॉट इनफ टू अकोमोडेट, बट इट कैन नॉट बी सेड कि नो, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया आपका. The education system should be properly designed so as to enable the educated people to be self employed. तो यहाँ पे बोल रहा है कि education system should be properly designed, ठीक है, to make the educated to be self employment. Yes, we want people to be self employed, not much we don't want them to solely rely on the government jobs or other things, but डिज़ाइन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो, ठीक है. सो जस्ट सेइंग दैट कि वी डिज़ाइन समथिंग which will be a solution, no, designing plus implementing on the ground level is also important. However, you can be confused in both, ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा. तो ऐसे केस में गोल्डन रूल्स बोलता है कि जहाँ पे आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे, यू कैन रीड द पैसेज वेरी क्विकली, ठीक है. Let's start reading the passage very quickly from somewhere middle, ठीक है. Reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indian who face high employment challenges and greater willingness to wait for the right job. They want to wait deliberately, and the challenge is greater with secondary and higher education, and rising education level inflate the unemployment. Rising education level, greater willingness or the aspiration. So with the passage also says that the answer should be B, ठीक है. तो जहां भी कंफ्यूज हो रहे वहां पे पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इट विल जस्ट टेक 30 सेकेंड 40 सेकेंड ज़्यादा, और कुछ नहीं लेगा आपका, ठीक है. सो बेस्ड ऑन द above passage the following assumptions has been made. Protection of privacy is not just a right but has a value of the economy. So protection of privacy is not just a right. अब यहाँ पे not आ रहा है या no आ रहा है, but आगे but भी आ रहा है कि सिर्फ वही नहीं है, ये भी है, ठीक है. तो ऐसे नहीं है कि बस अपना दिमाग, जीएस का दिमाग ना लगा के जस्ट एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, जीएस लगाना है. सो प्राइवेसी इज लिंक्ड टू वैल्यू ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज सी प्राइवेसी लीड्स टू पेटेंट्स, ठीक है. आप कोई भी अपना कोई फॉर्मूला तैयार कर रहे हो, आप अपने कोई इनोवेशन तैयार कर रहे हो, ठीक है, और उसकी प्राइवेसी ना हो तो लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कोक है. सो आज कोक का फॉर्मूला अगर सबको पता लग जाए तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोक बन के बिकना स्टार्ट हो जाएगी. तो वो जो कोक जो कंपनी है उसके लिए तो इकोनॉमिक वैल्यू का नुकसान है ना. तो एग्जैक्टली, सो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट ऑल्सो अ वैल्यू ऑफ इकोनॉमी. प्राइवेसी का राइट आपको बताइए, ठीक है. आप अगर जीएस आपका पॉलिटी स्ट्रांग है तो आपको पता होगा राइट टू प्राइवेसी कहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो इस स्टेटमेंट से कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन. अभी मैंने डिस्कशन में बताया कि यस, प्राइवेसी का लिंक है इनोवेशन के साथ, पेटेंट्स के साथ, और फिर इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है. सो यस, देयर इज अ फंडामेंटल लिंक एंड द आंसर शुड बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Based on the following assumption, patent protection given to patentee put a huge burden on public purchasing power in accessing the patented medicine. तो पेटेंट प्रोटेक्शन जो मिलता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, तो उससे दवाइयाँ महंगी होती है, जाहिर सी बात है. यू माइट हैव सीन दैट some of the injections are into lakhs and करोड़ रुपीस, ठीक है, रेयर डिजीज के मामले में खासकर. तो यस, पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती है. दिस सीम्स टू बी ओके, वी कैन नॉट एलिमिनेट फर्स्ट. डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स is a huge burden for developing and poor countries. So ये चीज़ कुछ हद तक कह सकते हैं कि ठीक भी है, बट ये फोकस कर रहा है कि डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल इज अ ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड प्योर कंट्रीज. अगर ये डेवलप्ड कंट्री भी कर रही होगी तो उसके लिए भी ह्यूज बर्डन होगा ये, ठीक है. तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सही भी नहीं बोल रहा है और बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं बोल रहा है टाइप्स, इसको अभी रख सकते हैं. बट फर्स्ट स्टेटमेंट से थोड़ा सा वीकर स्टेटमेंट है. सेकंड, आगे देखते हैं. प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मैनी कंट्रीज. तो अफोर्डेबल मेडिसिन देना इज अ की गोल. की गोल का मतलब होता है द अल्टीमेट गोल, द मेन गोल. सो अफोर्डेबल मेडिसिन देना मेन गोल नहीं होता है कभी भी किसी भी डिज़ाइन हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइंस का, ठीक है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है. तो मेन अल्टीमेट गोल प्रिवेंशन की तरफ होते हैं, ठीक है. मेडिसिन प्रोवाइड करना ये सब क्योर है, और क्योर का एक हिस्सा है बस मेडिसिन. डायग्नोसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो दिस शुड बी अल्टीमेटली बिना किसी डाउट के एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है. मेन गोल नहीं हो सकता कि अफोर्डेबल दवाइयाँ देना, ठीक है. मेन गोल ब्रॉड होते हैं, ये बहुत नैरो गोल है, ठीक है. तो इट कैन नॉट बी अ की रोल. गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन appropriate balance between the right of patentees and the requirement of the patient. Now this seems to be a most convincing statement अभी तक का, कि गवर्नमेंट को पेटेंटीज और जो पेशेंट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के बीच में गोल्डन मीन एक डिसाइड करना चाहिए. पेटेंटी का ये है कि उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है. तो वो अब वसूलेगा दवाइयों की प्राइसेस से. पेशेंट का ये है कि उसके लिए चीज़ें अफोर्डेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए. तो वो दोनों के बीच में एक गोल्डन मीन पिला पाना, दैट इज़ अ रोल ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज सेइंग करेक्ट, ठीक है. तो फोर्थ अभी तक का सबसे बेस्ट, विदाउट एनी डाउट फोर्थ. 3 को एलिमिनेट करना ही है, और 1 एंड 2 में 1 सबसे ज़्यादा सही चल रहा है. लेट्स सी द ऑप्शन नाउ. आपने 3 को तो हटा ही दिया था, so you remove 3, you have to take 4, you don't have any option but you only left with 1 and 4, ठीक है. तो कई बार ऐसे भी काम करेगा आपका. अब यहाँ पे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे अल्टीमेटली डिसाइड हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 62. A flex solution implied in the passage, ठीक है. Flexible environment is needed to develop solution. कोई भी सोल्यूशन निकालना हो आपको किसी भी इशू का, एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट तो चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स को. तो दिस इज वैलिड, दिस इज काइंड ऑफ एन एवरग्रीन स्टेटमेंट. हाउस होल्ड नीड कस्टमाइज सोल्यूशंस. हाउस होल्ड को कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए, ठीक है. अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ के ऊपर है, तो देख लेते हैं. फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग. जो लोगों की हाउस होल्ड सेविंग्स होती है, जैसे कि कैश रखते हैं लोग, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हैं, ठीक है. इस टाइप की जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, तो उनका फाइनेंशियलाइजेशन होना, मतलब उनका इकॉनमी में आना, ठीक है. सर्कुलेशन होना इकॉनमी में बेसिकली. सो बेसिकली उसके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए होंगे. मे बी मे नॉट बी राइट टाइप्स है ये, ठीक है. इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड. इनोवेशन हर सेक्टर में रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भी रिक्वायर्ड है, और सारे जितने भी सेक्टर्स है उसमें रिक्वायर्ड है. एवरग्रीन काइंड ऑफ स्टेटमेंट है ये, ठीक है. तो 1 और 3 में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको. 2 में अगर डाउट है, मतलब मुझे लगता है कि हाउस होल्ड नीड्स कस्टमाइज सोल्यूशन. एवरीबडी नीड्स कस्टमाइज सोल्यूशन. जितना आप कस्टमाइज सोल्यूशन दे पाते हो किसी को, सो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें फिट हो पाती है. स्टिल यू वांट टू रीड द पैसेज, यू कैन रीड, बट मुझे लगता है कि ये ठीक है, ठीक है. अभी आप देख सकते हैं चाहे तो.
The populace accustomed to traditional process will not simply jump to financialization. Hurdle to change include onerous, onerous bureaucracy, a skepticism of organized financial institution, a lack of basic information about which the myriad services and providers is best for each family. बेस्ट फॉर ईच फैमिली, तो यहाँ पे आई गया कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपके यहाँ पे डी आंसर होना चाहिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल मैसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनफीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। इवन अगर तुमको नहीं पता है व्हाट डज इनफीबल्स मीन्स, ठीक है, इतना तो पता है कि मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, दैट यू नो। Modern technology making life difficult, is that valid always? No. Modern technology helps you to, you know, reduce your workload, helps you in various things, so it cannot make your life difficult always. तो ये तो eliminate हो गया। Modern life is full of uncertainties and endless difficult choices. Extreme statement। Modern life में endless difficult choices ही रहती हैं, अनसर्टेनिटीज ही रहती है, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम जा रहा है, ठीक है। ऐसा हमेशा ही होता है, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी डिफ़िकल्ट चॉइसेस नहीं होती हैं, कभी कभी इजी होती है, कभी कभी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो यू कैन नॉट ऑलवेज से दिस। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो, सी द वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड, नो करेज टू फॉलो आर ओन। मतलब हम लोगों के ओपिनियन से ही इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारा खुद का कोई कन्विक्शन, करेज, कन्विक्शन वगैरह नहीं होता है। तो दिस इज ऑल्सो ऑलवेज रॉन्ग। बचा गया डी ही बचा, फिर भी देख लो डी क्यों सही है। इन आवर लाइफ्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी गुड। बहुत कम चॉइसेस अच्छी नहीं हो सकती हर बार। बट हैविंग टू मैनी कैन इक्वली एज डिफिकल्ट। बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा होना भी दिक्कत वाली बात है। तो ये थोड़ी सी सही बात कर रहा है, ठीक है, बैलेंस भी बात कर रहा है। तो डी इज मोर लॉजिकल, कॉमन सेंस भी से भी सॉल्व हो सकता है ये। रिफ्लेक्ट द क्रक्स। टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। ग्लोबल पावर बनना है तो आपको यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। तो यस, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ गलत बात नहीं बोली उसने, जीएस के हिसाब से लॉजिकल ही बात बोली है कि हमें यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू बिकम ग्लोबल पावर। तो बिना एजुकेशन, बिना विदाउट दैट नॉलेज इकोनॉमी, यू कैन नॉट बिकम ग्लोबल पावर। दिस इज़ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट, अभी तक ठीक चल रहा है, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इंडिया इज अनेबल टू बिकम ग्लोबल पावर, इट इज़ नॉट फोकसिंग और प्रमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। एक नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, नेगेटिव टोन भी है और नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी बोल रहा है। तो इंडिया कभी मतलब इंडिया इज नॉट एबल टू बिकम, अनेबल, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर रहा है। नॉट होता है एक्सट्रीम, फोकस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, बट मे बी उतना नहीं कर रहा है जितना रिक्वायर्ड है, नॉट इनफ, बट इट इज डूइंग। ऐसा आप नहीं बोल सकते। देयर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम वर्किंग ऑन, you know, promoting the knowledge economy or working on the education part, focusing. So this you have to eliminate. Our education system should focus more on imparting skills during higher education. So this is providing one of the, you know, solution, but the solution is very narrow, that you have to provide the skills at only higher education. Higher education means college time. So why not you do that from, you know, a kind of सेकेंडरी लेवल और मे बी अपर प्राइमरी लेवल से ही क्यों नहीं आप स्किल्स की तरफ बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट करें? क्यों हायर एजुकेशन? तो सोल्यूशन है, कुछ सोल्यूशन है कुछ लेवल का, बट वेरी नैरो सोल्यूशन। सो वी कैन नॉट टेक दिस, मतलब इफ यू चूज ए एंड सी, यू हैव टू चूज ए। So this is towards more eliminated side. Parents of many school children are illiterate and are unaware of benefits of quality education. So it is also an extreme statement. यहाँ तक ठीक था, parents of many school children are illiterate, that is justified. बट उसके बाद आर अनअवेयर ऑफ बेनिफिट्स, मतलब जो इलिटरेट भी है दे आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन। दे आर अवेयर ऑफ द, मतलब कभी आपने नहीं देखा होगा कोई पेरेंट्स ऐसे बोलता होगा कि
एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, ठीक है. सो दे वांट टू फोकस ऑन द क्वालिटी एजुकेशन. इज जस्ट दैट द thing is that because of a lot of poverty, inaccessibility to education, affordability, etc., नहीं हो पाता है, ठीक है. बट दिस कैन नॉट बी सेड. दिस पार्ट इज very very negative, extreme also, and not logical. You can cut D. If you choose between A and C, A is more appropriate, ठीक है. even if इसमें confusion है, आप passage पढ़ सकते हो, but I don't think so there would be much of confusion here. 52 में क्या most logical practical, ठीक है. message: it is necessary to put proper effluent treatment protocols in place. Yes, it is necessary to put proper treatment protocols of anything. कोई भी वेस्ट हो उसका ट्रीटमेंट होना ही चाहिए, ठीक है. अभी तक हमें नहीं पता पैसेज में किस वेस्ट की बात हो रही है, बट अभी तक लग रहा है कि हाँ कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसा नहीं है बहुत नेगेटिव है ना, बहुत एक्सट्रीम कुछ बोल रहा है, जीएस के हिसाब से इलॉजिकल इरेशनल बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. वी हैव टू कीप दिस. अभी आपको ये रखना ही पड़ेगा यहाँ पे. इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल. जीएस के हिसाब से ठीक है, यस यू हैव टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन पीपल. कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है. वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस. स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन नॉट, सी द वर्ड कैन नॉट, फोकस ऑन द वर्ड कैन नॉट, बी डन अवे एज इट इज इनहेरिटेंट इन modern medical care. So now this is very kind of an extreme statement that you cannot actually do away with the drug resistance bacteria menace, ठीक है, because it cannot be done as per the inheritance of this in modern medical science. तो ये चीज़ तुरंत एलिमिनेट होनी चाहिए. फार्मा कंपनीज, अब नाउ इससे ये पता लग गया कि वेस्ट कौन सा है. बेसिकली ये मेडिकल काइंड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की बात हो रही है, मोर टुवर्ड्स फार्मा से है, तो मेडिकल केमिकल वेस्ट की बात हो रही है. जो फार्मा कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है तो उससे निकलने वाला एफलेंट जो वाटर स्ट्रीम में जाता है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा, मोस्टली ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज के बारे में फोकस्ड है. सो फार्मा कंपनीज शुड बी सेटअप इन रिमोट लोकल एरियाज. वहाँ पे सेटअप कर दो अवे फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज़. So ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है. if you shift the companies from urban areas to rural areas, तो होगा क्या, रूरल एरियाज में भी देयर आर पीपल, ठीक है. तो जो समस्याएं यहाँ पे हो रही है वो रूरल लोगों को होगी, बस इतना ही तो फर्क पड़ेगा. पॉपुलेशन वहाँ पे कम लोगों को होगी, बट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ठीक है. डी, नाउ यू आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी. सो अब पैसेज नीड टू पुट प्रॉपर effluent treatment protocols. It is necessary to promote environment awareness among. देखा जाए तो जो ये सी डी ए एक तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, बी थोड़ा सा अलग बात कर रहा है, तो इट इज मोस्ट लाइकली कि ए की तरफ ज़्यादा चांसेस है आंसर होने के. इट्स लाइक 60-40, बट स्टिल यू हैव टू रीड द पैसेज, ऐसे हवा में नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो लेट्स सी द पैसेज. वाइल अवेयरनेस ऑन यूज, मिसयूज, अब्यूज इज कॉमन नॉलेज. तो अवेयरनेस तो लोगों को है ही ऑलरेडी, इसका मतलब, ठीक है, अवेयरनेस इज अ कॉमन नॉलेज बता रहा है वो यूज मिस यूज का. तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी है, ठीक है. इम्पैक्ट एज द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वगैरह ऑफ एंटीबायोटिक्स. कंपनीज नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट हैज स्कारली डिस्कस्ड एट एनी लेंथ ऑफ सीरियसनेस thus far. तो मतलब अभी मतलब बताना चाह रहे हैं कि द रियल इशू विच इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड इज नॉट ट्रीटिंग द वेस्ट बाय द फार्मा कंपनीज. सो यहीं तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि द अकरेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस सराउंडिंग द फार्मा मैन्युफैक्चर प्लांट इज वेल नोन, ठीक है. ये सारी यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि देयर इज अ नीड ऑफ नेसेसरी टू पुट अ प्रॉपर एफलेंट ट्रीटमेंट, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है. ऑलरेडी पीपल आर अवेयर्ड. लॉजिकल रैशनल, ठीक है. फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटी ओन्ड लैंड्स. तो जो ट्रीज जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, मैंगो, ठीक है. सो दे शुड रिप्लेस द अदर ट्रीज.
in rural and tribal. You know that tribals are very dependent on the forest or the trees part, ठीक है, for their food, fuel, fiber, medicinal properties, etc. So if you replace everything with the food yielding part, so other चीजें compromise हो जाएगी ना. So this is not a practical solution. So it's not a practical solution. Next thing, food security cannot negative word ध्यान रखें इसका, cannot be ensured in India with the present practice of conventional. Negative tone, negative perspective of the statement cannot be ensured with the practice of conventional agriculture तुरंत eliminate होना चाहिए, ठीक है. बिकॉज जरूर नहीं, मतलब कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ही थोड़ी ना सारी समस्या है फूड इनसिक्योरिटी की या फूड सिक्योरिटी नहीं इंश्योर होने की. बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स टू हेल्प द पुअर, ठीक है. बट इसमें दिक्कत क्या है कि ठीक है ये अच्छी बात है कि दे शुड बी कन्वर्टेड टू हेल्प द पुअर ही क्यों आ रहा है, एक तो ये थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रहा है मुझे. दूसरा ये कि ठीक है इन लोग को एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कन्वर्ट कर दो, बट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है एग्रो इकोसिस्टम, नाउ एग्रो इकोसिस्टम इज अ लार्जर अम्ब्रेला टर्म, ब्रॉडर टर्म है जिसके अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री आती, ठीक है. should be developed in addition to along with conventional agriculture. Now this is giving a very broad and very लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ सोल्यूशन कि एग्रो इकोसिस्टम को भी आप चालू करिए, कन्वेंशनल फार्मिंग को भी चालू करिए, ठीक है, दोनों को अलॉन्ग साइड चलाइए. अब एग्रो इकोसिस्टम जो है वेस्टलैंड डिग्रेडेड वगैरह बाकी सब में तो होगा ही होगा, बाकी जगह भी होगा. तो दिस इज मोर ब्रॉड फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन, प्रैक्टिकल ऑल्सो मोस्ट लॉजिकल, ठीक है. क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ न्यू क्लाइमेट एग्रीमेंट. तो जस्टिस जो है क्लाइमेट जस्टिस उसको डिटेल में रूल्स की में न्यू जो जितने भी एग्रीमेंट्स कर रहे हो आप उसके अंदर होना चाहिए. एंड ठीक है कुछ बहुत एक्सट्रीम जाने की कोशिश नहीं कर रहा है और कुछ गलत भी नहीं बोल रहा है कि जस्टिस शुड बी देयर, ठीक है. विदाउट डिफाइनिंग द जस्टिस हाउ कैन यू डू द जस्टिस, ठीक है. तो वो एक चीज़ है, यू हैव टू डिफाइन इन डिटेल, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है. एनवायरमेंटल रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है. कुछ बुरा नहीं बोल रहा है कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. देखा जाए एनवायरमेंटल रिसोर्सेज सब जगह ही है, बट विद इन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. बट नथिंग, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, बस फैक्ट आ रहा है, ठीक है. चलो रख लेते हैं. There is an impending issue of dealing with a huge number of climate change victims, climate refugee, huge number, impending issue. So the emerging issue of dealing with the climate change refugees, which are going to be in very huge number. Yes, this is also cannot be eliminated. It says so. और आने वाले वक्त में काफ़ी सारे climate refugees काफ़ी नंबर में क्लाइमेट विक्टिम्स होने वाले हैं. तो देयर विल बी सम इम्पेंडिंग इशू. क्लाइमेट चेंज इन ऑल its connotation is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more. Okay. So all in all connotations, तो मतलब पूरा का पूरा दोष डेवलप्ड कंट्री पे ऑल कनोटेशन में मर देना, तो एक ये थोड़ा सा एक्सट्रीमनेस आ गई है इसके अंदर, इस एंटायर स्टेटमेंट के अंदर. और सारा बर्डन उन पे ही होना चाहिए. देयर शेयर ऑफ बर्डन शुड बी मोर, तो ठीक है, देयर शुड शेयर ऑफ बर्डन कैन बी मोर, ओके, दैट इज जस्टिफाइड. बट इन ऑल कनोटेशन इज मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम चला गया, ठीक है. इन एनी केस आई विल कीप दिस टुवर्ड्स एलिमिनेटेड साइड. बट स्टिल अगर आप देखोगे, ठीक है, बी का बहुत ज़्यादा तुक बन नहीं रहा है, बट ए और सी में अभी भी आप कंफ्यूज रहोगे. तो नाउ यू हैव टू यू हैव टू सी द पैसेज इन दिस. मतलब इसमें एक्चुअली पैसेज देखने लायक है भी ये क्वेश्चन, ठीक है. तो लेट्स सी द पैसेज. So far in our climate change summits or compared, both the principles have eluded the consensus among nations.
बोथ द प्रिंसिपल, कौन से दो प्रिंसिपल्स की बातें हो रही है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, क्लाइमेट इज सिग्निफिकेंट रिस्क। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स और क्लाइमेट जस्टिस दोनों को ही कंसेंसस नहीं बन पा रहा। जस्टिस इन द जुडिशियल सेंस इज वेल डिफाइंड, हाउएवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इट हैज साइंटिफिक एज वेल एज सोशो पॉलिटिकल कनोटेशन। मतलब जस्टिस जुडिशियल सेंस में तो वेल डिफाइंड है, बट वहाँ पे जब ये क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो इसमें डिफरेंट डायमेंशन कनोटेशंस आते हैं। और द क्रूशियल क्वेश्चन इज दैट how the resources, how the technologies, how the regulations will be used to support the victims of the climate change. Justice in climate is not confined to actions of mitigation, but also includes the wider notion to support the adaptation and compensation of loss and damage. तो इसका मतलब ये जस्टिस एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक मिटिगेशन ही नहीं आ रहा है, लॉस एंड डैमेज का कंपनसेशन भी आ रहा है, अडेप्टेशन भी आ रहा है। तो आप जब तक इसको डिफाइन नहीं करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स नहीं कर पाओगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कंसेंसस ही नहीं बनेंगे। तो देर इज अ इम्पेंडिंग, आई वुड से देर इज अ वेरी क्वाइट नीडफुल टू ingrain climate justice in detail in the agreements and compacts. हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। तो दिस वाज द पार्ट 2। आई होप इट would have helped you